Is it visible? Yes, sir. या तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करते हुए. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीनियर कॉम्बिनेशन. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सबस्पेस. तो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन में आगे हम डिस्कस करेंगे स्पैनिंग ऑफ ए गिवन सेट कि स्पैन क्या होता है. तो सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन मींस मेरे पास वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स को हम लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में देख रहे हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज आउट आई हैव सम वेक्टर्स लाइक u1 u2 so on un be n vectors of a vector space v and let alpha 1 alpha 2 so on alpha n be n scalars. Then alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus so on alpha n un is called linear combination of u1 u2 so on un. Okay, it is also called a linear combination of the set say S containing the vectors u1 u2 so on un. ठीक है, तो अगर हम उसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो अब मैं स्पैनिंग ऑफ ए सेट की बात करता हूं कि स्पैन ऑफ ए सेट क्या होता है. अब यही स्पैन जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, अब इसके जितने भी फाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दैट इज कॉल्ड ए स्पैन. So you can say that the span of a subset S of a vector space V is the set of all finite linear combinations of the set S. In other words, you can say that S is a subset of V and the span of a set is being written as, in other words, if S is a subset of the vector space V, the span of the set S is, now the span of the set is being written as in the square bracket, is denoted by इस तरह से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, and it is being represented as a finite linear combination. Such that alpha i's are scalars and ui's, u1 alpha I means alpha where I is equal to be 1 to n. Okay, ui belongs to be a set S. So this is the linear combination. This is the known as the spanning of a set as S is there. So now we discuss out कि how we can say that any जैसे अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए.
मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट मेरे पास सपोज V3 जो है, V3 यू नो दैट द V3 भी हम बार बार लिखते जा रहे हैं कि V3 जो है हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है कंटेनिंग अ 3 ट्यूपल्स, है ना. तो हमारे पास V3 की डेफिनेशन है कि इट इज हैविंग अ 3 ट्यूपल्स such that each element belongs to be a reals for every I is equal to be 1 2 3, है ना. I is equal to be 1 2 and 3. So let this V3 be a वेक्टर स्पेस. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं वेक्टर स्पेस हमारे पास ये, और एक सेट ले लेते हैं हम सपोज 1 0 0 and 1 1 1. ठीक है, now this is any subset of a V3. ठीक है, अब इसका अगर मुझे स्पैन चेक करना है, द स्पैन ऑफ अ सेट एस, वो क्या होगा कि ये एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन. अब जैसे मेरे पास ये सपोज U1 है, यहाँ पे ये वाला U2 है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो सेट एस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इज द linear combination alpha times U1 plus the beta times U2, where alpha and beta belongs to be reals, any reals, and U1 comma U2 belongs to be a set S. ये set S के अंदर से है. इसका मतलब now I can have, this can be alpha 1 0 0 plus beta 1 1 1, ठीक है, such that alpha beta belongs to be a scalars, reals. So this is equal to be collection of alpha 0 0 plus beta beta and beta such that this alpha beta are scalars. ठीक है, so this can be written as a collection of alpha plus beta comma beta comma beta such that alpha beta belongs to be a scalar. So this is the way we can write a spanning of a given set S is there. तो इस तरह से हम एक स्पैनिंग की बात कर सकते हैं कि एक सेट की स्पैनिंग कैसे हो सकती है. सो अल्फा बीटा आप कुछ भी ले सकते हैं अब यहाँ पे फ्रॉम दिस डेफिनेशन. ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ कि ये मेरे पास अब ये रिक्वायर्ड अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा है. अब यहाँ पे सपोज आप अल्फा को कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, बीटा को 2 ले लीजिए. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली जितने भी फाइनाइट ये लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं, they are all possible cases out there. So actually it is an infinite set which in whose each element can be generated by a finite linear combination. So basically you can say that it is a infinite set whose each element can be generated by a finite linear combination. तो इस तरह से हम वो स्पैनिंग की बात जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, अब suppose out and further say that अगर मैं इसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में लूं, so let P4 be the set of all polynomials of degree less than or equal to 4. ठीक है, एंड कंसिडर, और सपोज आपके पास सेट एस दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा x4 be any subset of this P4. ठीक है, तो फाइंड द स्पैन ऑफ अ सेट S. तो हमने स्पैन निकालना सपोज, तो स्पैन की अगर मैं बात करूं अगेन, तो क्या होगा, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट S. अब ये मेरे पास U1 है, ये U2 है, ये U3 है ना. तो क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थर्ड स्केलर
टाइम्स x की पावर 4 हो जाएगा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द स्केलर्स। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करता हूं, तो क्या बन जाएगा ये? So I will write in the terms of the polynomial of degree 4. So this is the gamma times the x power 4 plus alpha times the x power 3 plus beta times the x square plus beta times the x plus alpha, where alpha, beta, gamma are the scalars. So this is a linear combination. Of alpha, beta, gamma, you can suppose anything. So any finite linear combination is representing by the span of a given set. तो एक बात का ध्यान रखिए, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। जैसे स्पैन ऑफ ए सेट जो है, इट इज ऑलवेज ए सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। अगर आप इसकी सबस्पेस देखें तो दिस इज द सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, एंड द स्पैन ऑफ द सेट is the smallest subspace of the vector space containing the S. ठीक है, it is the smallest subspace of the vector space containing the S. It is always a vector space, it is always subspace of a vector space, and it is the smallest subspace of a vector space. अच्छा, अब मुझे suppose out चेक आउट करना है कि कोई एलिमेंट, जैसे मैंने स्पैन बना लिया, ठीक है, हमने स्पैन की बात कर ली। अब मुझे चेक आउट करना है कि कोई भी एलिमेंट क्या उस स्पैन का हिस्सा है कि नहीं है, क्या उस स्पैन के अंदर लाई आउट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, सपोज वी हैव टू बी गो विद द केस, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, इसमें तो कोई सारे एलिमेंट्स लाई आउट करेंगे ना, तो इसी तरह का क्वेश्चन है कि क्या हम कोई एलिमेंट लेते हैं, क्या वो गिवन सेट के स्पैन के अंदर लाई करता है कि नहीं करता। सो उसी का क्वेश्चन है, चेक whether 1, 0, 0 belongs to span of the set 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये जो एलिमेंट है इसके स्पैन के अंदर लाई आउट करता है कि नहीं करता। पहले तो इस सेट का स्पैन क्या होगा। इस सेट का अगर मैं स्पैन देखूं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होता है, स्पैन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट है। तो यानी कि आई हैव टू गो विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 1, 0 प्लस बीटा टाइम्स 1, 2, 1। ठीक है, अब अगर ये एलिमेंट इसके स्पैन में बिलोंग करता है तो यू कैन से दैट 1, 0, 0 will be equal to be some linear combination of the elements of these for some alpha and beta belongs to be reals। ऐसी अल्फा बीटा की कोई वैल्यू होगी जिसके लिए ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा, है ना। तो वही अल्फा बीटा हमने निकालने हैं। अगर हम ऐसे अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, then you can say that this 1, 0, 0 belongs to a span of a set, otherwise not। Sir, हाँ जी बेटा, प्लीज sir, can you please scroll up a little bit? स्क्रॉल अप। काफी है। Yes, sir. Thank you, sir. हमने अभी बोला कि ये 1, 0, 0 इसके स्पैन में तभी होगा अगर ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वही हम चेक आउट करते हैं इक्वेटिंग अप द इक्वेशंस। तो इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं यहाँ पे। पहले तो ऐड ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा कॉमा बीटा। तो यहां से मेरे पास इक्वेशंस निकल आई 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी 1, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू बी 0। तीसरी इक्वेशन निकल आई मेरे पास बीटा इज इक्वल टू बी 0। ये तीन इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अगर मैं इसे इक्वेट करता हूं, अब यहां से मेरे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू बी 0, है ना। अगर मैं बीटा इज इक्वल टू बी 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या आ जाएगा,
अल्फा इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। अब मेरे पास अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0 है। अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को अब पहली क्वेश्चन के अंदर डालता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है, राइट हैंड साइड 1 आ रही है। इज इट पॉसिबल? अगर मैं अल्फा को 0 डाल हाँ दूं, सर। बीटा को 0 डाल दूं, तो मेरे पास 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू भी 1 जो है ये सेटिस्फाई नहीं होती है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब है वी कांट फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन दिस केस। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि 1 0 0 है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए स्पैन ऑफ द सेट। ये स्पैन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको आप वैसे भी देख सकते, सो यू कैन से दैट 1 0 is not equal to be alpha times 2 1 0 plus beta times 1 2 1, or you can say that 1 0 0 does not belongs to a span of the this set. इस सेट को मैं लिख लेता हूं ऐसे 2 1 0 1 2 1. It does not belong to this span of this set. अब इस ये स्पैन के अंदर बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, आप इसको वैसे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास जैसे ये 3 क्वेश्चंस है ना, तो हमने इसको RREF मेथड से भी सोल्व किया हुआ है 3 क्वेश्चंस को। अगर आपकी ये क्वेश्चंस अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में कंसिस्टेंट आ जाती हैं तो ये बिलोंग करेगा। अगर इनकंसिस्टेंट आती हैं तो बिलोंग नहीं करेगा। आप वैसे भी चेक कर सकते। कई बार क्वेश्चंस थोड़ी लंबी आ जाती है ना, तो इन दैट केस यहां से निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आप एनी मेथड यू कैन बी अप्लाइड टू चेक आउट द वेदर कि कोई भी जो एलिमेंट है वो स्पैन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो से दैट another question of the same type, so check whether the element 1 1 belongs to be a span of the set 2 0 0 1। ठीक है, क्या ये इसके अंदर बिलोंग करता है? तो अगेन यू कैन सो गो विद द लाइक 1 1। अगर मैं बात करूं तो कैसे करेंगे? 1 1 इज इक्वल टू बी अल्फा टाइम्स 2 0 प्लस बीटा टाइम्स 0 1। ठीक है, so this will go with like 1 1 is equal to be 2 alpha comma beta if you go with the addition of the corresponding elements। तो यहां से फिर से 2 क्वेश्चन मेरे पास आ गए। एक आ गया 2 अल्फा इज इक्वल टू बी 1, दूसरा आ गया बीटा इज इक्वल टू बी 1। तो यहां से आ गया अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1। तो यू फाउंड सच ए वैल्यू। किसी अल्फा बीटा के लिए आपके पास ये 1 1 उसके इक्वल आ रहा है, तो इट मींस दैट जो देयरफॉर क्या होगा? 1 1 belongs to be a span of the set। ठीक है, तो ये जो 1 1 एलिमेंट है it belongs to span of the given set। ठीक है, अब सपोज आउट इसी तरह के क्वेश्चन और देखते हैं। अब मैं ऐसे पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे लेता हूं। सपोज आई हैव some set out there in terms of a polynomial, so check whether x cube plus 2x plus 1 belongs to span of the set say S, which is equal to be 1 x x square x cube or not। अब क्या है, ये इसके स्पैन के अंदर बिलोंग करता है, तो वी हैव टू बी वेरीफाई दैट। अब कैसे करेंगे? अगेन अगेन द सेम प्रोसीजर कि दिस एलिमेंट is equal to be linear combination of the elements of a span of the set S। ठीक है, and if we can find such a, अगर हम ऐसे
स्केलर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देन इट्स ओके. वी कैन से दैट x cube plus 2x plus 1 is equal to be say alpha naught into 1 plus alpha 1 into x alpha 2 into x square plus alpha 3 x cube. ठीक है. तो नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं. अगर मैं कोफिशिएंट्स इक्वेट करूं तो कांस्टेंट इक्वेट करता हूं तो अल्फा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 है ना. और x वाला कोफिशिएंट इक्वेट करता हूं तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. अल्फा 2 क्या आ जाएगा? 0. एंड अल्फा 3 क्या आ जाएगा? 1. तो वी फाउंड ऑल सच कोफिशिएंट्स. हम ऐसे सारे स्केलर्स की वैल्यू निकाल ली. सो दिस इंप्लाइज दैट x cube plus 2x plus 1 belongs to be a span of the set 1x x square x cube, or you can say this is equal to be the spanning of a set S. वो belong करता है. ठीक है. Yeah, any query? इसी तरह से suppose another example we will take up, like so check whether x cube minus 2x belongs to the span of the set S, which is equal to be x minus 1 x square minus 2 x cube. अब हमने चेक करना है कि क्या है ये इसके स्पैन के अंदर बिलोंग कर रहा है. यस. अगेन you can say that the x cube minus 2x is equal to be alpha times x minus 1 plus beta times x square minus 2 plus gamma times the x cube. Again we can go with the some simplification of the right hand side first of all. So ये हो जाएगा alpha x plus beta x square है ना plus gamma x cube, और ये कांस्टेंट इकट्ठे कर लेता हूं मैं माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा. अब कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं. ठीक है. इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स नाउ. तो इफ आई इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल x, तो अगर मैं x वाला वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वेट करता हूं तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है? -2. ओके. इफ आई इक्वेट द कोफिशिएंट x स्क्वायर, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. ठीक है. Now if I equate the coefficient of x cube, then I get the value of gamma is equal to be 1. ठीक है. But if I equate the constant part, अगर मैं constant part को देखूं तो constant part मेरे पास है माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा. अगर मैं ये कोफिशिएंट इक्वेट करता हूं तो ये इज इक्वल टू बी 0 होना चाहिए अकॉर्डिंगली. और अगर मैं ये वाली कंडीशन अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू को 0 डालता हूं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? यस. अगर मैं ये बीटा की वैल्यू 0 डाल दूं इस इक्वेशन के अंदर तो दिस इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड ना, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज अगर मैं बीटा को 0 डालता हूं तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, बट यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू -2 आ रही है. क्या हो सकता है कि एक ही अल्फा की दो वैल्यूज हो जाए? अभी मैंने बोला कि फॉर सम अल्फा बीटा एंड गामा वी कैन हैव इक्वेटिंग ऑफ दीस कोएफिशिएंट्स आर देयर. So therefore you can say that this x cube minus 2x it does not belongs to be the span of the given set. तो इसलिए वो उसके span के अंदर belong नहीं करेगा. It does not belongs to be span of the set S. Clear? Any query? Yes, any query? No, sir. Okay.
एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं तो उसको आप खुद ट्राई करके मुझे बताइए कि वो स्पैन के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको सोल्व भी करूंगा अभी मैं, ठीक है। सो चेक whether 3x squared plus x plus 5 belongs to be span of the set S, which is equal to be x cube comma x squared plus 2x comma x squared plus 2 comma 1 minus x. Yes, give me the answer. I'm waiting for you. And just tell me the answer whether it belongs to be span of a set S or not. सबसे पहले क्या करेंगे? This can be linear combination. linear combination की फॉर्म में लिखेंगे. So this is alpha 1x cube plus alpha 2 times the x square plus 2x plus alpha 3 times the x square plus 2 plus alpha 4 times the 1 minus x. अब उसके बाद इसके लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लीजिए. क्या आ जाएगा? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स अल्फा 1 की वैल्यू 0 है, ठीक है. देन एक्स स्क्वायर वाले इक्वेशंस को इक्वेट कर लीजिए. अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 क्या आ जाएगा? 3. देन एक्स वाले को इक्वेट कर लीजिए. क्या हो जाएगा? अल्फा 2 टाइम्स अल्फा 2 माइनस अल्फा 4 इज इक्वल टू बी 1. देन कांस्टेंट्स वी हैव क्या आएगा? 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू बी 5. Yes, now give me the answer whether it belongs to be or not. करेगी सर बिलोंग? Yes, sir. Belongs करेगी, ठीक है. Because we have some alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 कुछ values के लिए ये belong करेगी. तो you can say that it belongs to be. तो क्या values आ रही हैं? वैल्यू नहीं निकाली. सेकंड और थर्ड को सर ऐड करेंगे हम, मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे, सेकंड इक्वेशन आ रहेगी, ठीक है. तो सिंपल ही चल रहा है. आप इसको कंसिस्टेंट वाले टेक्निक से भी फॉलो आउट कर सकते हैं. जैसे सपोज आउट अगर मैंने बोला कि आपने रैंक वाला प्रोसीजर फॉलो आउट करना है तो आप इसे ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं. अगर मैं पहली क्वेश्चन देखूं तो ये है 1 0 0 0. दूसरी क्वेश्चन देखूं तो ये है 0 1 1 0. तीसरी क्वेश्चन देखूं तो ये है 0 2 0 minus 1 and the corresponding elements are 0 3 1 and last one is 5. Here we have a 0 0 2 and 1. तो आप इसे RREF फॉर्म के साथ इसका रैंक प्रोसीजर चेकआउट कर लीजिए. अगर ये कंसिस्टेंट आती है तो ये बिलोंग कर देती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है. सो एनी प्रोसीजर यू कैन बी फॉलोड अप, ठीक है. तो अगर तो आप कह देते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू बी द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A इज टू बी, ठीक है. देन सिस्टम इज अ consistent, or you can say that this 3x square plus x plus 5 belongs to be a span of the given set. तो वो span के अंदर belong कर देगी, ठीक है. Yeah, anyhow you will found out the unique values for the alpha, beta and gamma. Yeah. So any query? Okay. Now further I'm going to be discuss up basis upon these. Now I'm discussing about the linearly independent and linearly dependent set. तो linearly independent या linearly dependent की बात हम कैसे कर सकते हैं? Based upon the these required
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए अभी हमने डिस्कशन किया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, ठीक है। अब अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी जाए, ठीक है, वो कंडीशंस क्या है? हमने कहा कि ये जो अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 सो ऑन अल्फा n un है, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब अगर ये ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है या नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है, बेस्ड अपॉन दैट वी कैन डिफाइन लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, ये ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन कब हो सकता है? ये ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर मैं ट्रिवियल की बात करूं, ऐसा अल्फास बीटास कब हो सकते हैं? जब मैं अल्फास बीटास को जीरो ले लूं, दैट इज ऑब्वियस ट्रिवियल आ जाएगा वो लोग, 0 टाइम्स u1 प्लस 0 टाइम्स u2, है ना, एंड सो ऑन। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिसमें ये सारे के सारे अल्फा आई जीरोस हैं, then that set of a vectors is said to be a linearly independent। अगर उनमें से कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता है, कोई भी एक स्केलर जो है वो नॉन जीरो आ जाता है, in that case it is said to be a linearly dependent। ठीक है, so now I'm discussing about a linearly independent and linear dependent sets। ठीक है, so we will discuss of this linearly dependent and linearly independent sets based upon the trivial or non-trivial linear combination of vectors। So let u1 u2 so on un belongs to be a vector space V. Now here I am taking the V as a vector space। ठीक है, so let u1 u2 so on un belongs to be a vector space V, then alpha 1 times the u1 alpha 2 times the u2 so on alpha n un is called a linear combination of vectors। Then alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus so on alpha n un is called linear combination of vectors for each alpha I belongs to be reals। Now if all alpha I is equal to be 0, where I is equal to be 1 to n, in this equation you can say, इसको हम स्टार ले लेते हैं। In star, then such linear combination is called trivial linear combination। And if at least one alpha I is non-zero, where I is equal to be 1 to n, in equation star, then such linear combination, here LC I am representing as a linear combination। Okay, so मैं say LC means linear combination, तो rather than पूरा लिखने की बजाय हम छोटा लिखते हैं, ठीक है। Then such linear combination is called non-trivial linear combination। And now based upon this,
we can define a linearly dependent and a linearly independent set of vectors. You can say that अब मैं linearly dependent set of vectors की बात करता हूँ, say LD. LD means a linearly dependent set. A set of vectors. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा please. So can you scroll up a bit? हाँ. Is it okay? Yes, sir. Should I scroll down? Yes, sir. So a set of vectors u1, u2, so on un is said to be linearly dependent if there exist scalars alpha 1, alpha 2, so on alpha n, not all 0, such that alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus so on alpha n un is equal to 0. ठीक है, हमने बात किया कि ऐसे कुछ स्केलर्स हैं जो नॉन जीरो हैं, नॉट ऑल जीरो, कुछ जीरो हो सकते हैं पर सारे के सारे जीरो नहीं है, सच दैट ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन थी दैट विल बी अ जीरो वेक्टर बेसिकली. ठीक है, देन दैट सेट इज कॉल्ड अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट. तो उस सेट को हमने नाम दे दिया लीनियरली डिपेंडेंट सेट. LD मींस अ लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, LD मींस अ linear dependent, उसको हम LD से लिख रहे हैं. Now we'll talk about a linearly independent set, LI. ठीक है, अब फिर से वही डेफिनेशन है, a set of vectors u1, u2, so on un is said to be linearly independent if there exist scalars alpha 1, alpha 2, so on alpha n, all zeros. So if there exists alpha i's, I is equal to be 1 to n, such that this all alpha i's is equal to be 0. ठीक है, where I is equal to be 1 to n. Then the set of vectors is said to be linearly independent. You can say that we हमने लिख लिया ऊपर, the set is said to be. हाँ जी बेटा, any doubt? So if I substitute this value in this equation and all the alphas I are zeros, in that case you can say that that set is a linearly independent. अच्छा, अब आपको ऐसे ही चेकआउट करना है कि आपको कोई सेट दिया हो जाएगा and you have to be check it out whether that set is a linearly dependent or linearly independent accordingly. तो you have to be verify that. ठीक है, तो अगर तो आपके जो अल्फाज आइज जो हैं उनमें से एक भी नॉन जीरो आ जाता है then that set is linearly dependent. Otherwise अगर सारे के सारे जीरो आ जाते हैं in that case you can say that your given set is a linearly independent. Okay, yeah, any query?
say that the question here is based upon the linearly dependent and linearly independent set. Check whether the following vectors are linearly independent or not. ठीक है, तो सेट आपको दे दिया है, सेट S is equal to be say x square into e power x, comma x into e power x, comma x square plus x minus 1 into e power x. तो ये सेट दे दिया आपको, ठीक है। अब करना क्या है, अब आपको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है इसे और इक्वेट करना जीरो पे, ठीक है। तो अगर आप सारे के सारे अल्फा आई जीरोस हैं और आपके पास ये अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 सोन, ये जो अल्फा एन u1 जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हो, ये सारे के सारे जीरोस हैं फॉर ईच अल्फा आई इज इक्वल टू बी 0, देन दैट साइड इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ये अल्फा आईज नॉन जीरो आ रहे हैं, कोई भी एक भी नॉन जीरो आ गया, देन दैट साइड इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सो लेट अल्फा बीटा गामा बी स्केलर्स, स्केलर्स मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस बीटा टाइम्स एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स इज इक्वल टू बी जीरो वेक्टर। दिस इज जीरो वेक्टर, ठीक है। अब नाउ इक्वेटिंग अप द कोफिशिएंट्स, थोड़ा सा इसे सिंपलीफाई कर लीजिए और इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स कर लीजिए। अब क्या करते हैं, पहले सबसे सब में से जो e पावर x है वो कॉमन आ रही है, तो मैं e पावर x कॉमन निकाल देता हूँ। अंदर जो टर्म बच रही है उसको मैं जो सेम टर्म्स हैं कंबाइन कर लेते हैं, जैसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। तो x स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा, फिर मैं x वाली इकट्ठी कर लेता हूँ। तो x वाली टर्म्स क्या होगी, वी हैव बीटा प्लस गामा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म बची हमारे पास माइनस गामा इज इक्वल टू बी। अब ये जो जीरो है हमारे पास, जीरो वेक्टर, इस जीरो पॉलिनोमियल, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू बी जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इंटू ई पावर एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को, यस वी कैन राइट इट आउट। सो कंपेयरिंग करते हैं कोफिशिएंट्स को। अगर आप एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो अल्फा प्लस गामा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर आप x को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा जीरो आ जाएगा। और अगर आप कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, गामा जीरो आ जाएगा। तो यहां से गामा जीरो आ गया, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बीटा भी जीरो आ गया, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा भी जीरो आ गया, तीनों के तीनों जीरो आ गए। सो द गिवन सेट इज क्या आएगा, लीनियर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, Independent. independent। Yes, so this is a way you can check it out. So I think it's enough for today. In the next lecture we will be exploring of some more parts. I think ठीक है, any doubt into this lecture you can ask me. Sir, हाँ जी बेटा प्लीज। सर जो आप मेकअप क्विज के बारे में बता रहे थे, वो अगर किसी ने मार्क्स इम्प्रूव करने हैं तो दे सकता है? मार्क्स इम्प्रूव वाला तो नहीं होता बेटा वो,